welcome to the PH Law entrance test. Herein, we are going to solve two passages, each followed by five set of questions. They're based on CLAT AILET pattern primarily, but they also include questions of OLET examinations as well. I'll be telling you the techniques and tricks as to how can you eliminate the option choice, what does the option choice mean, what are the type of questions that are asked, how can you eliminate the option by categorizing these options. I'll be telling you different types of even how to identify the figure of speeches, as well as I'll be explaining you some of the complex passages as how to skim read them if the passage is difficult for you to understand or read maybe. Not just that, different question types, how to categorize even the question, and how to look forward to the, so to say, any vocab meaning, or maybe how can you just simplistically draw an idea from a passage or set of words that is difficult for you to maybe comprehend, but then it is easier for you as to how to just take out that one key idea that the passage is talking about or your question is asking. Okay, so I covet that I hope that we'll be able to take both of these passages. Stay tuned to this. Without much ado, I would like to commence. All right, so if you would have watched my previous video as well, I told you never to directly come just start with the questions also, and just not just start reading passage from A or B itself what they have given. Always be smarter in your approach as to read, okay, what is the passage basically talking about. Just read the first line of what the paragraph is suggesting, and maybe just read the last line of what it is suggesting. You would gradually come to know maybe the genre. You would be able to know what maybe it's a first person in which author has given the narration, or maybe it's a third person perspective. You would understand whether, okay, you know what will happen when you are able to look, okay, here it's very little information that passage is starting from I, but then you can figure out, okay, maybe the author ki tone has be descriptive or narrative, or maybe author is here when he's telling from a third person point of view using pronouns like she and her, maybe he's being analytical there, or maybe he will be opinionated because obviously वो third information अगर बता रहा है third person के point of view से, हो सकता है कि वो अपना perspective उसमें लाए. So these little things, they make you aware, they make you an active reader, and this is the fight, right? That you have to be the active reader here, and you should know as to how can these little things will be differentiating you and making you a better reader. That is what my point is. All right, so always develop an eye for these things. And there's another thing that I told you, always look at what is the source. All right, always look at what is the source of the passage. Why is it important? See, look, you might say, okay, today, you just go on and read, just open this website and read from here. You'll understand Aeon Essays has wonderful, wonderful pieces of article. They are waiting for you with bated breaths, and you need to read that. So, I would request you guys to please, look at these sources. Start reading from these sources. These are standard sources from where, maybe CLAT consortium might be taking up passages, or maybe, coaching institutes are preparing their mocks from. If you have, you read, if I've read passages, articles from there, you would be able to understand the orientation, the language, and how as to, things are written. It won't be difficult for you to then read your passage, because maybe हो सकता है आपको passage की language हमेशा अलग लगती हो from what your regular textbooks are. Obviously, आप जो regular textbooks पढ़ते हैं, passage की language, उसकी tone, उसकी vocabulary, काफी सारे aspects पे it's a very different thing, right? सो रीड फ्रॉम दीज वेबसाइट्स. तुम डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो. ऑब्वियसली मैं आपको बिल्कुल आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे. जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड रीड द वेरी आर्टिकल फ्रॉम देयर, राइट? इट्स क्वाइट एन ओल्ड आर्टिकल. Yeah, so just try to understand what it is telling, how and what is the title, and maybe you will come to know a lot about the passage. All right, so this is some general information that I wanted to give you. Now I'll tell you how to start. Always start from here, okay? So, and then I'll read the entire passage. And then later on, after reading the entire passage, we'll explain the entire passage as well. The question, we'll eliminate all of these option choices. What is the correct answer? Everything. So that is how the video would be going about. All right. So yeah.
just make sure that you at first attempt to read the passage. I'm pausing this two paragraphs here. Pause this video, read this one passage, and try to answer the questions on your own. Your application of your own mind. What I am suggesting is application of your own mind, right? So pause this video here. Look at the questions that have been asked and why they have been put forward. What could be the possible answer, right? Analyze, be critical. This is what the exam is demanding from you. All right. So just look at these questions. Okay. Solve it by your own. Just quickly pause the video and look at the options. All right. I'm going to commence now, reading the passage. Okay. How the last letters that condemn can teach us how to live. All right. अब इससे मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ पैसेज जो होगी लास्ट लेटर्स की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑर्थर एक बहुत ही पॉजिटिव है, इस तरह की बात नहीं करने वाला, वेरी हैप्पी और बूमिंग वेदर की बात नहीं करने वाला, वो कुछ ग्लूमी या कुछ सैड बात कर सकता है, ठीक है. Okay, let's just read the passage now. On a wintry day in Bordua. Okay, this is not from India. I took a refugee rain from Cozy Bookshop. Fine, author is has not revealed anything about him in this line. I picked up, opening the passage. Okay, opening the pages slowly, carefully in my hand as if my fragile treasure. I'm no stranger to the theme of killing and dying, but this experience was different. So yes, my guess was correct. This is going exactly in the same direction. There are themes of killing, etc. And remember, we talked about last letters. Last letters, unlikely the type of encounter, their area of singular ilk. The author knew that there will not be another chance to say what must be said. Each last letter is uniquely personal. They'll be reading how to teach men who teach them to live. Then this is how I'll be going on. I have taken the gist of all the paragraphs, even though I don't know what is the exact content of the paragraph, but then I know what is the passage roughly talking about. Passage is basically kahin na kahin he's talking about, I'm no stranger, he's talking about some themes of killing and dying. And if you read the last line here also, it's talking about Nazi and German occupation. So somewhere it is talking about, it is a historic in genre. B, it is talking about soldiers, a war, maybe some German and Nazi a war. And the maybe the author is reading the last letters of some soldiers or on. This is what assumption that you can make. Okay. Yeah. Each translator is uniquely personal, is universal. He who teach men would deal. Okay. What is the tone of the passage? Now look, इतना जस्ट लगाने के बाद, इनके टाइटल पढ़ने के बाद ही तुम टोन तो आंसर कर पाओगे ना यहाँ पे, कि टोन इज नॉट दैट. अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑप्टिमिस्टिक या बहुत खुशी वाली टोन, तो नहीं है. Tone is a bit sad, gloomy. It's not talking something about really very fun. Okay, although it is not advisable कि आप इस तरीके से करें, but then I'm telling you these techniques. जब आपका टाइम छूट रहा है तो प्लीज ऐसे ये अप्रोच के साथ आप पढ़ें एंड तब उसे टिक लगाएं. इन केस अगर अटेम्प्ट का मैटर करता है कि पेपर इजी बन गया, अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं, उस केस में आपको, अगर आपका छूट रहा है फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट, अगर हो सकता है एग्जामिनर आगे आपका टाइम ले लिया हो एंड साइन वाइन कराने में ओएमआर आपने ऊपर नीचे भर दी हो या कुछ हो गया हो सकता है आप पेपर में लेट आए हो 10 मिनट बाद, कुछ भी हो सकता है पेपर वाले दिन, डोंट नो, राइट. तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये सारी टेक्निक्स जो आप सीखे रहोगे तो शायद से आप अटेम्प्ट कर पाओगे. तो ऐसा नहीं होगा कि यार अगर लोगों ने 120 के पेपर हो रहा है, बच्चों ने यार 115 के ऊपर अटेम्प्ट करके आए हैं और तुम 90 अटेम्प्ट करके आए हो. समझ लो ना, डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाएगा. तो फिर ये सारी टेक्निक्स आप तब यूज करना. अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज इट एंड व्हेन नॉट टू यूज इट. दिस इज नॉट एडवाइजेबल कि आप हवा में उड़ो, बट देन नो इट कि ये शॉर्टकट हो सकता है, मुझे अपनाना पड़े, ठीक है. So yeah, after reading and analyzing the choice of words, which of the following can be inferred? This is inference related question that is asking me. Okay, keyword is inference here. What does the author mean by the line? अब उसने मुझे particular line ही पूछ ली, ठीक है. ये वाली लाइन अपन ओपन भी देख रहे थे. Okay, which is the most appropriate alternative for a disparaging layer contextually? Again, इसने मुझसे vocabulary पूछ ली. What is the literary device used in he who teaches men? Okay, same line से दो बार क्वेश्चन आया. literary device यानी कि figure of speech पूछी गई है मुझसे. All right, now I know कौन सी लाइन मेरे लिए important है. एंड नाउ आई ऑल्सो नो कि मेरे को कहाँ से क्वेश्चन आया, तो मैं वहां ज्यादा फोकस करूंगी, ठीक है. ओके. और विंट्री
a day in Bordeaux, France, I took refuge from rain inside a cozy bookshop stacked to the ceiling with books. Placed Gambetta. I would pardon my pronunciation if it is not how it is pronounced. Yeah, Bordeaux's iconic square frame in majestic 18th century limestone facades was under construction. It is always like this. The owner told me with a disparaging glare. I was not sure if the comment was directed at the rain or the construction site. Inside, I borrowed shelves, soaking in the tiles one by one. A book cast among thousands caught my eye. La Vie and Mourir. Lesser des Fossiles. Sorry, I am really sorry about the pronunciation, guys. Really pardon me on that part. Um, okay, so यहाँ से मैं समझ सकता हूँ ला वी यानी कि द लाइफ समथिंग एन मुरीर मतलब हो सकता है वो रोने की बात कर रहा हूँ माउन ओके आई डोंट नो फ्रेंच सो या हो सकता है कि फॉरेन लैंग्वेज भी आए तो ओके nonetheless it contained farewell letters to those shot by Nazis firing squad during German occupation of France in the Second World War. Now उसने मुझे बताया कि मेन पॉइंट क्या है ऑर्थर एक लेटर पढ़ने जा रहा है वो लेटर यहाँ का है ठीक है सोचो इस लाइन में सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था ये बोर्दुआ फ्रांस से जा रहा है प्लेस गैम्बिटा है ये जो फ्रेंच की लाइन पढ़ने में अपना सर खपा रहा था 18th सेंचुरी ऑल ऑफ दैट इज डेटा नो वेर इट इज रिलेटेड टू the passage. There is absolutely no question on this. Never waste your time on such things. बिकॉज तुम्हें पता है कि यार सिंपली बात क्या है ऑर्थर क्या करने जा रहा है उसने पहले पहले पैराग्राफ में अपना एक्शन बताया है तुम्हारे लिए वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेटिंग बता रहा है पैसेज की तो उतना ही देखो जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर तुम एक एक पे जाओगे ना पढ़ने बहुत सर दुखेगा बिकॉज इस तरह के बोरिंग तुमने फ्रांस नहीं देखा होगा हो सकता है तुमने देखा हो आई मीन आई डोंट नो ईच वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो बट मे बी किसी ने देखा यू माइट नॉट बी एबल टू रिलेट इफ दैट इज व्हाट माई पॉइंट इज यार अगर तुम मान लो कहीं से बैठे हो यार maybe you're watching this video and you've never been outside India. It is hard for you to relate sometimes with European nation, right? क्योंकि कैसे यार आपकी वेस्टर्नाइज अप्रोच है ही नहीं आपने जो देखा इंडियन प्रॉब्लम्स देखी है राइट यू हैव नेवर सीन स्काई स्कैपर्स ठीक है क्योंकि तुम्हारे में तो बड़े बड़े बंगले घर और वो तुमने देखे हैं अच्छे खेत बागान देखे हैं तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू इमेजिन राइट सो ऐसे में कि अगर तुम अच्छे से रीडर हो तो ऑब्वियसली ये कोई बार नहीं है बट आई एम टॉकिंग विद वेरी जनरल पर्सपेक्टिव कि हो सकता है कभी कभी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है रीड करने में तो कभी भी परेशान मत होना हमेशा मेन आइडिया पिकअप करना कि सेटिंग कहाँ है समझ में आ गया एक फ्रांस का बंदा पढ़ रहा है जर्मन उसके वॉर को अच्छा नाजी वॉर के बारे में पढ़ रहा है चलो ठीक है ना ऑक्यूपेशन ये तो पता है ना तुम लोग को भी शायद से सीबीएसई वाले अगर जो सीबीएसई में होगा उनको तो एक चैप्टर होगा द लास्ट लेसन राइट उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना द नाजी कैप द जर्मन कैप्चर इन फ्रांस राइट तो एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर हमेशा निकालना आना चाहिए अगर तुम्हें पैसेज से नफरत हो गई है तो ठीक है हो सकता है इस टाइप का जॉनरा यार तुम्हें पसंद ना आए ठीक है तो एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर निकालने की कोशिश करो कि अच्छा इससे रिलेटेड मैंने कोई इन्फॉर्मेशन तो कभी पढ़ी है in case you're completely unaware of what is in the whatever it is happening yeah चलो आगे बढ़ते हैं I picked it up opening the pages slowly and carefully as if I held in my hand a fragile treasure like the butterfly wing which 19-year-old Robert Bissett executed for his role in an intelligence gathering and sabotage network bequeathed to his mother to remember by I flitted through the pages, reading the flashes of a letter here, longer passages there. As someone who studies war, ऑल राइट सो ऑर्थर ने अपना प्रोफेशन बताया है यहाँ पे अभी ध्यान से एक क्वेश्चन इन्फ्लुएंस पे था याद करो आफ्टर रीडिंग ऑर्थर चॉइस ऑफ वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू author perhaps is a French ingenuous. He has no sentiments. Maybe I mean this is because I prepared the answer, but maybe ये line आपके लिए important हो because these are things you should know. Author कौन है कहाँ से हो सकता है उसकी ओरिएंटेशन क्या है सोर्स ऑफ द पैसेज क्या है ऑर्थर का प्रोफेशन क्या हो सकता है ऑर्थर का जेंडर भी तुम कभी गेस कर सकते हो इफ ही इज स्पीकिंग परहैप्स विद अ फेमिनिस्ट अप्रोच यू कैन सी आजकल एक टर्म चला है मैंस प्लेनिंग जनरली ऑब्वियसली करने को तो वैसे कोई भी कर सकता है यार कि मैंने एक मेल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ या मैं एक फीमेल पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ सॉरी ठीक है
सो ऑब्वियसली ये सब चीजें जो है ना, योर कंडीशन, सो ऑर्थर मे बी अ वेरी इलीट पर्सन, ही इज हैविंग इलीटिस्ट व्यू, ऑर्थर इज बिट वेस्टर्नाइज्ड, ऑर्थर की अप्रोच जो है काफी नेशनलिस्टिक है, जिंजोइस्टिक है, ऑल ऑफ दीज टर्म्स टेल यू द वेरी पर्सन ऑर्थर हो सकता है। यार हो सकता है किसी के लिए नथुराम गोडसे टेररिस्ट अप्रोच से देखो, बट इफ यू सी, इफ यू रीड हिज आर्टिकल्स, इफ यू रीड हिज टेक्स्ट, you would find it is having a nationalist approach, right? Because the tone of the author is like that. Maybe you might have read from somewhere कि ओके क्राइम कन्फेशन हुआ था टेररिस्ट, मे बी उसके उसके जो पर थॉट्स होंगे वो एज अ टेररिस्ट होंगे, बट नो, ही इज हैविंग a nationalist approach. Or maybe he's having maybe he's not having as fundamental approach as like what maybe some other terrorists might be having. So it is quite different. And that is why as lawyers it is important, या फिर आगे in your profession as lawyers it is important कि आप हर पर्सपेक्टिव पढ़ो, ठीक है। एंड ये आप तभी पढ़ पाओगे, ये जित चीजें आपने यहाँ डेवलप की है ना, आगे चल के आपको समझ में आएगा। मे बी यू हैव टू टुमारो डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिफरेंट नथुराम गोडसे टुमारो, और समवन लाइक नथुराम गोडसे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो तुम आज ये छोटी छोटी चीजें करोगे ना, इन दैट वे यू यू कैन अप्लाई दैट इन लेटर पॉइंट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो एज अ पर्सन जिसको रीडिंग आनी चाहिए, जो जो एज अ प्रोफेशनल लॉयर में अगर आप बन रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन कि यार ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही मैं नोटिस करूंगा, दिस इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। वरना ये जो दिया हुआ है वो तो सभी पढ़ रहे हैं, राइट? सो आई एम जस्ट गिविंग योर परस्पेक्टिव एज टू आप इसे कैसे सोच सकते हो विद द एग्जाम्पल। आई वुड सजेस्ट इफ यू वांट टू रीड, you can read so many of good articles. You can read Why I Killed Gandhi. You can read Experiments with Truth, what Gandhi is saying. You can read Waiting for a Visa. Understand their perspective there. They've written with such great in a great tone, in a great in their vocabulary, in this quality of words that they have used, and they have expressed themselves. So quite develop this habit of reading. These books are like just 16 pages, 31 pages, very small books, would not take much of your time. Read and understand. Maybe you would develop an eye for these things. You can understand, okay, author is coming from maybe a socio-economic backward class, or maybe the author is quite privileged one who has never been to a village or an area where there was no electricity or there were no resources, so to say. So author has a very cushioned life. You can make out from the words, and this is how it will happen, okay? So yeah, you can just and read all of this stuff and develop this perspective is what I wanted to say. All right. Last letters are unlike any other type of writing that I have encountered. They are of a singular ilk because they peer into the souls of those confronting imminent and inescapable death. Different from every letter. Diaries, memoirs, political tracts, philosophical treatises, because of the urgency that shaped the act of writing. Author know that there will not be another chance to say what must be said. What a heartbreaking lines, right? These lines are so very deep, so very tough to write. Each last letter is uniquely personal, yet it is a universal feel to them, almost if they paint a naked portrait of human condition. To read them incarcerates the face penned by Michael de Montage. If I were a maker of books, he wrote in 16th century, I would make a register with comments of various deaths. He who would teach men to die would teach them to live. Okay, so read the passage. वी अंडरस्टूड कि ऑर्थर है, कहाँ सेटिंग से कैसे आया उसने, है ना, सेटिंग वी अंडरस्टूड कि ऑर्थर आया एक बुक में पढ़ा ऐसे, इट्स अ ग्लूमी इन्वायरमेंट, ऑर्थर इज ऑल्सो पिकिंग अप उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे बारिश हो रही है, कंस्ट्रक्शन में भी ही इज पुटिंग अप लास्ट लेटर्स पढ़ रहा है उन सोल्जर्स के, एंड ही इज ट्राइंग टू रीड अबाउट एंड अंडरस्टैंड कि यार अच्छा देयर सम डॉक्यूमेंटेशन की जिस उस समय कैप्चर में क्या हुआ था, तो मे बी ऑथर इज रीडिंग अबाउट दैट, राइट? दिस इज द जिस्ट ऑफ द पैसेज, मोटा मोटा यही है ऑथर पैसेज में, ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर? पेनचांट। नाउ पेनचांट का मतलब आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ टोन वर्ड्स हियर, एंड मैंने उसके ऐसे टोन वर्ड्स भी मैंने लिख दिए हैं बगल में कि हो सकता है कि ये सारे वर्ड्स आ जाएं as following tone. So what I want to say is that कि आप इनको नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि um, ये सारे टोन वर्ड जो है वो सिनोनिमसली यूज हो सकते हैं, तो लर्न देम, ठीक है। ओके, पेंचांट का मतलब है enthusiastic, you have a fondness, you have a proclivity, you have a tendency, proclivity, और you can also say predilections, that means मेरे एक झुकाव है, एक likelihood है, तो एंड बिकॉज समवेयर आई कैन यू कैन से बायस्ड है, तो पेंचा ऑर्थर कहीं बायस्ड तो नहीं लगा मुझे,
ऐसा तो कोई एलिमेंट है नहीं ऑर्थर का, तो पेंचांट तो है नहीं। melancholy, sad and sorrowful, obviously this is the answer. But yeah, you should know polemic का मतलब होता है contentious और maybe controversial, तो आप ये पढ़ लीजिएगा. Earnest means sincere, serious. These are synonymously used. Correct answer is obviously B. I hope आपने इसका एक नोट कर लिया होगा. Yeah. Question number 2. After reading and analyzing the author's choice of words, which of the following can be inferred? The author is perhaps a French jingoist. The author has no sentiments and strings attached to his nations and thus feel no remorse on the happenstance. The author is an ardent orator who refuses to accept the status quo. The author enjoys a place coming from Nazis and is commodious, that is comfortable with the grounds on the foot. Now look, all of these options are so easy for you to eliminate. Author enjoys तो यहीं पे काट देना चाहिए. He's not enjoys, he's not at all happy. नाजीज पे तो उसने कोई स्टैंड दिया ही नहीं कि वो सोचे कुछ भी. इनफैक्ट ही इज एक्चुअली सिंपथाइजिंग एंड ही इज फीलिंग बैड. दैट्स वाई वो जो पूरा एनवायरमेंट उसने कहीं ना कहीं पे ही इज नॉट रियली कंफर्टेबल कि उसके लैंड पे जो भी हुआ एंड द वारफेयर वट एवर. ऑर्थर इज एन आर्डेंट ओरेटर. ऑर्थर ने स्पीच कब दी? ओरेटर मतलब समवन हु स्पीक्स वेल एंड एक्सेप्ट्स द स्टेटस को. आई डोंट नो व्हाट स्टेटस को दे हैव बीन सजेस्टिंग. तो इस ऑप्शन में अगर आप देखो कि ऑर्थर ने ऐसा तो नहीं बोला हाँ ठीक है नाजीज आ रहे हैं, इट्स ऑल राइट, आई एम ऑल राइट विद दैट. आई genuinely do not like give any damn about it. Author status quo मतलब author is indifferent to it, but no, author is reading, author is trying to sympathize, author is trying to relate, author is feeling for something. तो for sure ये भी ऑप्शन आंसर नहीं है, क्योंकि ये ऑर्थर को, ही इज नॉट एन अर्डेंट ओरेटर, राइट. तुमने यही पढ़ा था कि ऑर्थर इज समवन हु स्टडीज वॉर, राइट. सो ये तो आंसर नहीं है. ऑर्थर हैज नो सेंटिमेंट्स. नो, तो ऑप्शन को यही एलिमिनेट कर दो नो पढ़ के ही, क्योंकि इसका फ्लैगशिप वर्ड जो है ना वो नो है. तो हमेशा एक जो मतलब एक वर्ड होता है ना यार, एक जो टेम्पलेट जो जिसपे वो गलत होता है. दिस इज इसका टेम्पलेट क्या होगा? नो सेंटिमेंट्स. दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी. अगर मैं ऑप्शन को क्लासिफाई करूंगी आई वुड से दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग. इज एन आर्डेंट ओरेटर. दिस इज नॉट, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पैसेज, right. Author enjoys a place, again confirm, it's contradictory to what the author is suggesting. Now इसमें एक ही ऑप्शन बचा. ऑप्शन है he's a perhaps a French enjoys, even though अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा ऑथर इज समवन हु स्टडी वॉर्स, राइट. ऑथर इज समवन हु स्टडीज वॉर्स, बट येट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है. सो इन दैट केस ऑलवेज आप कुछ ऐसा, इन्फ्रेंस हमेशा जनरलाइज होता है ये तो पता है. इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव हो सकता है, पर इन्फ्रेंस इज समथिंग जिसपे ए भी एग्री करेगा, बी भी एग्री करेगा, आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूंगी. तो इन्फ्रेंस जनरल जनरल एक 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 जो आप पढ़ के एक जो हो सकता है आप निकालेंगे. देर इज अ प्रेमिस, देर इज अ कंक्लूजन, right. Conclusion is what the author is saying, premise is what he, how he is supporting with that, right. Now उस premise and उस conclusion से आप कुछ निकाल रहे होंगे, ठीक है. either it is assumption or it is an inference, right. नॉट द थिंग विद अजम्पशन इज, वो डायरेक्टली आपके कंक्लूजन की सपोर्टिव लाइन होगी, ठीक है. बट इन वो आपके उसका आपका प्रेमिस से लेना नहीं होगा, बट इन्फ्रेंस हो सकता है आपके प्रेमिस से उसका लेना देना हो. आगे की जब हम क्रिटिकल रीजन की कुछ पैसेज करेंगे जहाँ पे इन्फ्रेंस करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट. और मे बी अगर तुम्हें इन्फ्रेंस को लेकर प्रॉब्लम होती है, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं तो बताऊंगी टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्शन चॉइसेस जो इन्फ्रेंस में दी हो सकती हैं, जो पॉसिबल गलत है, जो पॉसिबल राइट है, एंड आई एक्सप्लेन द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस along with सर्टेन ऐसे करके ऐसे पैसेजेस, ऐसे कुछ पैराग्राफ पैसेजेस, एंड इवन आई विल गिव सम लॉन्ग पैसेजेस ऑल्सो जहाँ पे तुम्हें इन्फ्रेंस के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे. सो इफ इट इज दैट पेन पॉइंट, गो ऑन अंडरस्टैंड. मॉक में अगर तुम्हारे ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, ये इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन, तो समझो दिस इज अ वीक पॉइंट, दिस इज समथिंग दैट इज तुम्हारे गलत हो सकते हैं. तो डेवलप एन आई फॉर दीज थिंग्स. इनको अच्छे से एनालाइज करो, इनकी रीजनिंग अच्छे से स्टडी करो, ऐसे ऑप्शंस को कैटेगराइज करो, ट्राई टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स आउट ऑफ इट, एंड देन यू नो ये सब, ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद उसके बहुत, और ये सब तभी होगा जब आप उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे. जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो ना मॉक में, ऐसे लिए एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसको तभी सॉल्व करोगे. सो गो बाय दैट अप्रोच. आपका कोई पेन पॉइंट, कोई वीक एरिया नहीं रहेगा, ठीक है. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द लाइन ही हु वुड टीच मेन टू डाई वुड टीच देम टू लिव? यही तो वो लाइन समझ में नहीं आई थी. और इस लाइन पे पता है दो क्वेश्चन है. यस, अब देखो यार इस लाइन के क्या एसेंस है, क्या है वो, यू नो वो कितनी इंपॉर्टेंट है. आओ ऑप्शंस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. देन आई टेल यू उसका सिंबोलिज्म क्या है. बट अगर तुम्हें नहीं समझ में आया सिंबोलिज्म, नॉट समवन हु इज फिलोसफिकल, हाउ वुड यू इन्फर ऐसी लाइन से, कैसे कैसे समझोगे ऐसी लाइन को, कैसे इंटरप्रेट करोगे, राइट. ओके. ऑप्शन नंबर ए. ऑथर कोट्स दिस टू डेमोन्स्ट्रेट
दैट्स हिज कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? पेन। एंड फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब एक होता है ना, एक करंट, एक सोशल करंट, एक जोश है, एक दैट fervent towards those who sacrificed their life to rebel and retaliate against the Nazis, didn't surrender to their whims and dominion, while dominion and dominance, dominion, हाँ, expressing his distress towards those who accepted as fate. Now look, I'll tell you what the problematic part of this option is, but let us always, you know, read all the options because you should compare. Okay, you should always, जैसे तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपेयर कर रहे हैं ना कि तुम इससे बेटर हो, इससे बेटर हो, वैसे ही इन ऑप्शंस को भी उसी तरह ट्रीट किया करो। ओके, एंड कंपेयर किया करो, ठीक है? देर इज अ प्रॉब्लमेटिक पार्ट इन दिस। हो सकता है यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल्सो, बट देन आई कम टू इट। मे बी ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो है, जो पार्शली करेक्ट है या पार्शली रॉन्ग है, या मतलब ये जो ये वाला एस्पेक्ट है, हो सकता है आगे के ऑप्शन इतने खराब हो कि ये ऑप्शन टिक करना पड़े। जैसे कि ऊपर में होता, अगर यहाँ पे दिया होता ना ऑर्थर इज समवन हु स्टडीज वॉर, तो ये वाला मैं काट देती, राइट? बट वो नहीं दिया है तो ये टिक करना पड़ा। तो अडेप्टेबिलिटी एंड एन अप्रोप्रिएट आंसर। Okay, author is undermining the contributions of those who are now under incarceration and want them to accept the invasion as their fate and not to retaliate anymore. Live and die in a monotone. ना तुम अंडरमाइनिंग पे इस ऑप्शन को काट सकते हो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे तुम क्विकली आइडेंटिफाई कर लो ना, क्योंकि अंडरमाइनिंग से तुरंत समझ में आ रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑप्शन चॉइस क्या है। मतलब ऑप्शन को कैटेगराइज करोगे अगर तुम रॉन्ग क्यों है, क्योंकि कैटेगरी मतलब वो तुम्हें दिख रहा होगा अंडरमाइनिंग वर्ड से, तुम्हें समझ में आ रहा होगा दैट इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू द आइडिया ऑफ पैसेज, कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑथर, राइट? द ऑथर वांट्स दोज पीपल हु लिव टू डाई, दोज हु die to live. What does this option mean? And what a shit ass of an option. Cut this ad. Okay, D. Author wants to illustrate the endurance more, but he fails to capture the essence, vitality of those who bore and bought in such human condition. Now, I don't think so he failed anywhere. Because मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम यहाँ पे ऑर्थर को देखोगे ना ऊपर, उसने पूरी कोशिश की है कि वो समझने की कोशिश करे उनके दर्द को। वो कह रहा है इट इज यूनिकली पर्सनल, बिकॉज हर सोल्जर जो भी सोच रहा है, उसका माइंडसेट एंड हाउ ही इज प्रोसेसिंग दैट इंटायर थिंग, यार आज लड़ाई पे जाऊंगा शायद नहीं वापस आऊंगा, मे बी दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी वन, राइट? उनके घर का माहौल डिफरेंट होगा। मे बी ही इज हैविंग, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, मे बी हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट, मे बी ही इज हैविंग लाइबिलिटीज, मे बी ही इज हैविंग हिज पेरेंट्स वेटिंग, मे बी ही इज हैविंग जस्ट अ मदर and not a father, and mother is solely dependent on son. Maybe he's having just father who has lost his mother, and he's not has lost his mother, and he just sees father he एक parent है, and everyone is processing things very differently, and that is the pain of every soldier, right? And that is why it is uniquely personal when author says, क्योंकि हर इंसान इस चीज को, जिस व्यक्ति को भी लग रहा है कि यार आज पता नहीं वापस लौट के आऊं या नहीं लौट के आऊं, इसे अलग से प्रोसेस करेगा। मे बी समवन इज बोल्ड एंड ब्रेव एंड थिंकिंग, ओके, I'm dying for the nation today. I'm doing something very proud. I should be haughty of it. But then there will be some people maybe feeling bad for their family, maybe someone who want to live, right? And I think everyone जिसके भी जो भी ambitions है, irrespective of the profession, आप उसे respect करेंगे। तो इसीलिए it's uniquely personal, and author is not failing to capture that. I as a reader am able to process, I'm able to understand the place from where the author is able to come, where the author is coming from, and this is because author has enabled me to imagine that, and this is because he's written such greatly. Remember I told you about this paragraph when he writes about confronting imminent and inescapable death, when he writes that from every letters, from every memorials that you make, from every political tracts and every records and every treatise that you make, the urgency that shapes the act of writing, the author knows that there will not be any chance to say what must be said. तो आज जब मुझे एक मौका मिला है कि मैं अपने को एक्सप्रेस कर दूं, शायद कल मैं ना बोल पाऊँ, ये मेरे आखिरी शब्द हैं, मैं कन्वे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज लास्ट है, so why should I not just say what I want to say in this life, you know? तो author is capturing it in such a beautiful way, so he is not failing anywhere according to me. तो यार ये ऑप्शन भी मैं काट दूंगी, बट कमिंग टू दिस ऑप्शन, आई टोल्ड यू समथिंग problematic in this option. What is that? While expressing his distress, ये वाली लाइन ना उसने कहीं नहीं करी है। तुम देखोगे ऑप्शन फंडामेंटली फ्लॉड है, उसने डिस्ट्रेस नहीं बताया है। इनफैक्ट वो उनकी तरफ उनको ही इज एम्पथाइजिंग, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्लेस वेयर द सोल्जर्स आर कमिंग फ्रॉम, एंड दोज जो उस इन दैट पेट्रियोटिज्म आर रेडी कि ऑल राइट, इफ आई हैव टू गिव सैक्रिफाइस इन समथिंग, व्हाई नॉट, बट आई वोंट एक्सेप्ट द स्टेटस quo.
I would rebel, and that is what my job is. And author respects them, right? But he never distress though. He never speaks about those. In fact, जो कि accept करते हैं them as fate, or maybe he doesn't say anything about that. This is again partially true, but partially incorrect, right? And in these type of passages, I'm telling you, इन दीज टाइप ऑफ पैसेज जैसे पार्शली, जितना वो गलत सही होता है ना, उतना ही ये गलत भी होता है। तो ऐसे ऑप्शंस को कभी लेना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ये सब ऑप्शन गलत है, तुम्हें दिख रहा है यही एक बचा है थोड़ा सा जो ठीक है, क्योंकि पार्शली रॉन्ग है बट पार्शली करेक्ट है, तो हमेशा इस पर टिक लगा दो। एंड अगर प्रॉपर पेपर बनेगा, प्रॉपर कंसोर्शियम में ग्रीवियंसेस रेज होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस हटा दिए जाते हैं। एंड इन सम केसेस, जैसे क्लास 2025 में हुआ था, आपको हो सकता है ग्रेस मार्क्स भी मिले इसके लिए। दोज पीपल हु हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, उनका क्यों लॉस हो भाई? इफ द ऑप्शन इज फ्लॉड, वो तो क्वेश्चन पेपर मेकर को ध्यान देना चाहिए था रीड करते टाइम, ऑप्शन बनाते टाइम। तो ऑलवेज अटेम्प्ट। हो सकता है शायद आपका ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि नेगेटिव्स में काउंट हो जाए। हो सकता है कंसोर्शियम ना हटाए, कंसोर्शियम हैज डन ऑल ऑफ दैट। कंसोर्शियम ने क्वेश्चन नहीं हटाया है, ठीक है। कंसोर्शियम ने क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं कि जिनको अटेम्प्ट मिला है। कंसोर्शियम ने क्वेश्चन हटाया भी है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव हैपेंड। सो इट्स योर डिस्क्रिप्शन, तुम्हें अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, तुम्हें करना है। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू, इट्स जनरली एडवाइज टू डू दैट। आई मीन यू कैन डू दैट। बट अगर तुम्हें लगता है मैं नेगेटिव कॉन्शियस हो कि यार मुझे मेरी एक्यूरेसी पे भरोसा है कि इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं नेगेटिव नहीं इनकर करना चाहता हूँ, दैट इज वॉट समथिंग दैट आई हैव एनालाइज फ्रॉम माई मार्क्स, डोंट डू इट। दैट टू ईच ऑन इट्स ओन देन। ओके। What, which word will be the most appropriate alternative for disparaging glare contextually? Now look, these type of questions are basically आज इन एलिट में पूछे गए हैं कई बारी कि यार इसकी जगह ये वर्ड कौन सा लगेगा, है वो vocab क्वेश्चन ही। आपको इसमें आपको these are good question types. ओके, वाई दे आर गुड क्वेश्चन टाइप्स? बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये आपको जो यहाँ पे दिया है वो तो पता ही होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया है ना वो भी पता होना चाहिए। तो दीज आर गुड क्वेश्चन टाइप्स। ओके, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, यही आपका लेवल, यही इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना जब, यही वो बच्चों को छांटते हैं, राइट? ओके। डेस्परेजिंग लेयर, अब तुम्हें नहीं पता एग्जाम्पल डेस्परेजिंग में ये DIS दिख रहा है तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था लास्ट क्लास में वर्ड पावर मेडिसी पढ़ना शुरू करो। आई डोंट नो वेदर यू ओपन दैट बुक और नॉट। आई मीन आई विल सजेस्ट इन एवरी RC सेशन, काइंडली काइंडली प्लीज डू दैट। बिकॉज आपको बहुत, अभी जो मैं बोलूंगी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला है। डिस्परेजिंग, डिस वाला जो लगता है ना प्रीफिक्स, ये जनरली नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। नेगेटिव कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कॉनोटेशन मतलब ये किसी अच्छे पॉजिटिव वे में नहीं करता। डिस्करेजमेंट, डिस्परेजमेंट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस इट इज समवेयर telling you that something not good is happening. You can understand from the tone itself, understand from the tone itself. But then again, it is uh that is the root word for disparaging. So similar words you can chalk off. Glare का मतलब क्या होता है? देखना। एंड लुक, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप पता लगा लोगे रूट वर्ड से, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप पता नहीं लगा पाओगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको? वोकैबुलरी पढ़नी है। ऑल राइट। ओके। अ डेनंसिएटरी, ना अगेन डी वाला ये जो लगता है ना रूट वर्ड, ये अगेन दिस टेल्स यू दैट कुछ दिस इज अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन वर्ड। ओके। अ डेनंसिएटरी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? एक इमेजरी मान लो, ठीक है, इमेज बनी है। अ रिजेंटफुल ग्ली, ग्ली का तो मतलब देखना होता है, पर रिजेंट का मतलब क्या होता है? अफसोस जताना, ठीक है। नाउ अब मैं किसी को डेस्परेटिंगली की तरह देख रहा हूँ, मैं अफसोस की तरह देख रहा हूँ, या मैं किसी को डेनंसिएटरी एलिमिनेशन है। अब इसको मैं एलिमिनेट करना सिखाएंगे। अभी हम पढ़ लो, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ की तुम वोकैबुलरी तुम्हें नहीं पता तुम वाइल्ड कंजेक्चर कैसे लगाओगे। अब कविशियस ग्लैंड्स, ना अगेन ग्लैंड्स भी ग्लेयर ही होता है, एल्यूमिनेशन ग्लेयर नहीं होता, बट ग्लैंड्स तो ग्लेयर ही होता है। बट कविशियस, कविशियस का मतलब क्या होता है? डिजायरेबल। यार मैं किसी को अफसोस से देख रही हूँ पर यहाँ पे कॉविशियस लिखा है डिजायर से। अगेन अ डिमिनुटिव लाइट, नाउ ग्लेयर एंड लाइट इज ऑब्वियसली नॉट मैचिंग, बट डिमिनुटिव का मतलब डिस्परेजिंग से, डिमिनुटिव का मतलब है डिमिनिशिंग, कम हो रही है, सॉर्ट ऑफ दैट। सो अगेन दिस इज completely unrelated. Covetous glance completely contradictory to what contextual meaning is, ठीक है। तो covetous glance तो है नहीं। रिजेंटफुल ग्ली एंड डेनंसिएटरी एलिमिनेशन में आपको अंतर निकालना है। एलिमिनेशन इज व्हाट?
आई टोल्ड यू इमेजरी, पर ग्लेयर का मतलब देखना, तो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये भी कट गया, तो नॉट इतना लेबर करने की जरूरत नहीं है, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, बट यस, एल्यूमिनेशन पहले ही एल्यूमिनेशन वर्ड की जैसे रिजेक्ट हो जाता है। रिजेंटफुल ग्ली तुम रख सकते थे ऑप्शन में, कोविशियस ग्लैंड कोविशियस के जैसे रिजेक्ट हो जाता है, डिमिनेटिव लाइट तो अनरिलेटेड है, तो ये तो सी बी ही होगा इसका करेक्ट आंसर। तो या, which is a literary devices that is used in the following line: he who teaches men to die would teach them to live. Now look, literary devices, or I would say figure of speeches. So you know, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना फिगर ऑफ स्पीच वाले, ये जनरली, ये सारे क्वेश्चंस आपके एलिट में आते हैं, ठीक है, एंड ओलेट्स में आते हैं, एंड क्लैट में भी आते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए कि व्हाट इज दैट। नो, व्हाई यू शुड नो दैट इज बिकॉज लिटरेरी डिवाइसेस एक टूल है टू अंडरस्टैंड ऑथर की टोन, ऑथर के हाउ वेल द ऑथर राइट्स, यू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। तो मैं बताऊं, इस लाइन में भी लिटरेरी डिवाइस है, एज इफ यू हेल्ड माई, एज इफ यू नो आई हेल्ड इन माई हैंड्स अ फ्रिजाइल ट्रेजर लाइक दिस बटरफ्लाई विंग। पता है, यहीं पे दो दो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, मैं तो बताऊंगी कौन से, है ना। इफ, यहाँ पे इफ यूज हुआ है, लाइक एन इफ, लाइक एन एज यूज होता है तो इट इज ऑलवेज सिमिली, बट यहाँ पे लाइक एन एज यूज नहीं हुआ है। इट इज टेलिंग यू आई हेल्ड इन माई हैंड अ फ्रिजाइल ट्रेजर, नाउ ऑर्थर इज कॉलिंग लेटर्स अ फ्रिजाइल ट्रेजर, दैट्स अ मेटाफर व्हेन यू गिव अ टाइटल टू समथिंग, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली, अ मेटाफर एंड अ एनालॉजी, एंड मे बी आगे मैं तुम्हें बताऊंगी सिनेक्डिकी वगैरह भी होता है, तो आई टेल यू ऑल ऑफ दैट। सो लुक, आई टेल यू, सिमिली एंड मेटाफर तुमने ज्यादातर सुना होगा, both of them are comparisons, ठीक है, both of them are comparisons. Now in simile it's a direct comparison, ठीक है, both of them are comparison of two fundamentally unlike things, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ट्रेजर, लेटर, क्या बात कर रहे हो, नहीं मिलते ना। दे आर comparisons between two fundamentally dislike things, but only difference is that simile is a direct comparison which is used, and you can see the direct comparison as and like words के साथ, like this butterfly wing, this is a simile here, ठीक है। बट द ओनली वे, अगर उसमें एज एंड लाइक नहीं है, वो तुम्हें कंपैरिजन दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज मेटाफर, तुमने उससे सीधे एक ये बोल दिया। तो अगर मैं बोलूँ तुम्हें इस लाइन में, इस लाइन में इट्स अ मेटाफर, ओके, बट इन दिस लाइन बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कंपैरिजन इट्स अ, इट्स अ सिमिली, ओके, इट्स अ सिमिली। सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ये पता होना चाहिए तुम्हें। एक और होता है, आई टेल यू दैट एज वेल, देर इज समथिंग कॉल्ड मेटोनमी एंड देर इज समथिंग कॉल्ड सिनेडकी, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेटोनमी? मेटोनमी इज सिंपली गिविंग टाइटल, इट इज सिमिलर टू मेटाफर, ठीक है, इट इज सिमिलर टू मेटाफर, बट इट इज गिविंग टाइटल। So in metonymy, you will give a title to a particular thing. You know, there is a closely associated thing with the with the person, and you will give, you know, that title क्योंकि वो उससे क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलिंग पर्सन कॉल्ड चश्मिश, ना चश्मा वो पहनता है व्यक्ति, इट्स अ क्लोजली यू नो रिलेटेड एट्रीब्यूट टू दैट पर्सन दैट ही वियर्स चश्मा, बट एंड यू कॉल हिम चश्मिश, तुमने से टाइटल देती, तुमने से नाम रख दिया चश्मिश, राइट। तो इट्स अ मेटोनमी, इट्स अ मेटोनमी, ठीक है, इट्स अ मेटोनमी। एंड या, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड सिनेडिकी ना, वो भी तुम्हें मेटाफर लगेगा क्योंकि कंपैरिजन ही होता है, ठीक है, उसमें भी तुम बोलोगे टाइटल, बट सिनेडिकी इज अ पार्ट ऑफ होल एंड अ होल ऑफ पार्ट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सिनेडिकी में एंड सिनेडिकी में व्हाट हैपेंस इज कि आप किसी पार्ट को होल बोल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल से, समटाइम्स यू माइट बी रीडिंग द हिंदू, राइट? आई होप दैट you guys are reading newspapers regularly, religiously, punctually. अगर तुम रीड करो न्यूज़पेपर, तुम्हें लिखता होगा न्यू दिल्ली हैज डन इन दिस, ना, न्यू दिल्ली हैजंट डन, ठीक है, इट इज इंडिया हु हैज डन इन इंटरनेशनल अफेयर्स के परस्पेक्टिव में, ओके। रशिया में लिखते हैं ना मॉस्को से ये हुआ है, या फिर यूएसए में लिखते हैं कि व्हाइट हाउस इज डूइंग दैट। आई मीन इट्स नॉट द व्हाइट हाउस दैट इज डूइंग, द डिसीजंस आर बीइंग टेकन फ्रॉम व्हाइट हाउस, राइट। व्हाइट हाउस इट्स जस्ट लाइक वो प्रेसिडेंट इज टेकिंग, एंड प्रेसिडेंट का नाम यूएसए इज टेकिंग, नाउ इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यूएसए, you know, so a part of whole,
and a whole of part, right? So when I say that, it's my wheels, just take me to work, that means I'm asking my car or my vehicle to take me to my work. you know that is what I'm suggesting. So in that case, तुम्हें लगेगा व्हील्स टेक मी टू वर्क, तो ये तो पार्ट है, इसको होल, तो मैंने एक होल का एक पार्ट बता दिया था, दैट इज सिनेटरी। अगेन इट इज गिविंग टाइटल, अगेन इट्स अ मेटाफर। मेटाफर इज अ फादर, इट्स अ बिगर थिंग, ओके। इडियम्स ऑल्सो कम अंडर मेटाफर्स, दे आल्सो टाइप ऑफ मेटाफर्स, बट वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, मेटोनमी हो गया, सिनेटिकी हो गई। आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर थिंग कॉल्ड एनालॉजी। अब बहुत अलग है एनालॉजी मेटाफर सिमिली से। आई टोल्ड यू इन द डेफिनेशन कि इट इज फंडामेंटली डिसलाइक थिंग्स का कंपैरिजन है। बट व्हेन आई से एनालॉजी, एनालॉजी आप सिमिलर चीजों की, अलाइक चीजों की, जो पैरेलल चल रहे होते हैं ना, पैरेलल लाइन सुना होगा ना आपने मैथ्स में, पैरेललोग्राम, राइट? रोम्बस ये सब पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, प्रूव करते होगे दीज साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? You guys might be doing that, and these prove that these lines are parallel to each other, and hence it is a parallel. How will you prove that it's a parallelogram? You might have done that in 10th or maybe, yeah. So in that case, yeah, they are parallel to each other. That means they're very alike. They're very similar in nature to each other. It's just saying one thing as to understand analogy. Say, draw, and you can say when you draw analogy, that means you're trying to explain the person ki what is the to understand A, you would say B, so that B is understand, it's reference उसका क्लियर है, क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति आप समझ रहे हो ना ए से, ए को जो समझाना चाह रहे हो, जो समझा रहे हो, ए नहीं समझ पाएगा क्योंकि व्यक्ति को ए नहीं पता है, बट व्यक्ति को बी तो पता है ना। तो आप एनालॉजी उस केस में ड्रॉ करते हो टू अंडरस्टैंड सिमिलर लाइंस पे हैं ये चीजें, जैसा ये है वैसा ये है। So that is analogy, completely different, but yes, आगे आएगा ये। तो I have told you these broader classifications of figure of speeches. All right. So what is the difference between metaphor and simile? I told you antithesis. All right. There is a difference. Terms होते हैं antithesis, paradox and oxymoron. These are also same stuff only. ठीक है। एक और वर्ड होता है juxtaposition. I'm telling you that also. एक और वर्ड होता है um, juxtaposition. ठीक है। Now, what is in juxtaposition? I'll tell you that as well. First, let me explain these terms. Now, in oxymoron, दो opposite words are placed एक साथ oxymoron में. Example: day night, light darkness, completely incomplete, all of that. Paradox. Now, paradox is a thing of apparent discrepancies there. There's an inconsistency out there. So that is a paradox. All right. व्हाट इज अ पैराडॉक्स? जहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी होगी, एक एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा, ओके। इट वुड नॉट बी, ए विल नॉट बी लीडिंग टू बी, मतलब इस ऐसे यू वुड बी अंडरस्टैंड देयर सम गैप देयर, सो दैट इज अ पैराडॉक्स, ठीक है। एंटीथेसिस क्या होता है? एंटीथेसिस मतलब देयर आर टू अपोजिट आइडियाज प्लेस टुगेदर इन अ सिमिलर सेंटेंस, that is antithesis. Now, when you speak for oxymoron, they are words. I will write that for you guys because it might be complicated for some of you. They are words, which are direct, which are completely opposite. They're opposite in nature. ठीक है? They're opposite in nature. But when I speak for antithesis, these are ideas. Okay, where is the typewriter, guys? Yeah, they are ideas which are different. Not different, I would say they are opposite. They're opposite ideas that are placed together in a sentence. Okay, that is antithesis. And then when I say what is a paradox, so in case of a paradox, it would always lead to a confounding situation. A confounding, an apparent discrepancy. ये तुमने पढ़ा होगा अपने सीआर में, apparent discrepancy. ठीक है? कहते हैं ना paradox of the argument. That is called apparent discrepancy. That is paradox. Okay, so it will, A will not lead to B. That is the key thing. ठीक है? Now I told you there is another thing called just a minute, let me place it. Just juxtaposition. No, juxtaposition is, यार हो सकता है वो opposite हो, वो same हो, they're just put across each other adjacently. They are two ideas which are placed together adjacently. ठीक है? So you can just say they're adjacently placed ideas
And yeah, that's it. That is it. It's not related to these things, but you should know the difference between oxymoron and antithesis. ओके, तो पैराडॉक्स तो यही, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, कुछ ऐसे लाइन अजीब लगी, इट्स नॉट अ पैराडॉक्स। मेटाफर तो कोई मेटाफर नहीं, जब कुछ नहीं होता तो मेटाफर होता है, याद रखना। ना ऑक्सीमोरॉन ना एंटीथेसिस में ना मोस्ट ऑफ यू विल फंबल है, बिकॉज तुम बोलोगे एक सेंटेंस है ना, तो एंटीथेसिस मार्क कर देते हैं। नो, ही हु टीच मेन टू डाई वो टीच देम टू लिव। डाई एंड लिव साथ में नहीं लिखा है, बट यहाँ पे पता है आइडिया, यहाँ पे आइडियाज जो है ना वो डिफरेंटली बात किए गए हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे फ्रेज है? नाउ विथ ऑक्सीमोरॉन आइडियाज, वर्ड्स एंड फ्रेज बोथ। वो टीच मेन टू डाई, टीच मेन टू लिव। I mean, these are phrases. They're literally words and phrases. That's why it's an oxymoron. So oppositely placed, not an antithesis. Not talking about an idea. Okay, where there is a very thin line. But तुम words and phrases को सिमिलर ही देखोगे। वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? देर इंडिपेंडेंट, यू नो, लेटर्स दैट आर जॉइन टुगेदर। वर्ड फ्रेजेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट, वो कुछ वर्ड्स होते हैं दैट माइट नॉट मेक सेंस, दे माइट मेक सम सेंस, राइट, but not complete sense. They're not complete as sentence. When we say antithesis, it has to be a complete sentence, a meaningful sentence. And there are two such sentences in one, complete essay, combining and making one complete sentence है, ठीक है, मे बी joined by comma, conjunctions or whatever. बट या दैट इज व्हाट आई वांट टू से, अगर वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, इंडिपेंडेंट आइडियाज होंगे, तब वो एंटिथेसिस होगा। अदरवाइज जब तक वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस है, इट्स ऑक्सीमोरन। ओके, या, so, with that, we come to the end of this session. I hope that you liked this video. I hope that it made some sense to you. Maybe you had understood something out of it. Please do comment if you have not understood anything, if you do not know any approach, if you find that there is something that has to be changed about it. Yeah, and if you think that everything is all right, you can just give it a like. If you want any other, you have recommendations to give, you have suggestions, you have requests, maybe you just want to ask something, comment section is all open. You want to give any feedback, I would request to please put up on in the comment section below. This sheet would be uploaded in the Telegram channel, so you can practice from there also. With that, I would like to call the session an end. Thank you so much for being with me. Thank you so much.